nice. Okay. All right. So one more person to the same question. What is risk management? Yes. Yes, Shubham. The risk is something that we can call as opportunity. Risk is that we can call as an opportunity. Okay. Yes, sir. Mm-hmm. Strategy to manage the risk, we find if we go risk as opportunity, we should find another risk, or we can create something new by the risk. And in business, we should take the risk. Otherwise, we can never develop our business or not. Mm-hmm. Okay. Very good. One more person. Should I answer? Yes, Neha. Sir, this is the degree of uncertainty. Uh-huh. So that the potential financial loss in investment decision. Very good, Neha. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. And because of this thing, to risk is managed, and those are to identify the potential problems before they occur. And second is without a risk management, it can't define its objectives for the future. So risk management is important for the business. Good, very good, very good. So let's take question number 4. What is strategy? Omkar. Yes, sir. Yes, Omkar. It is. Yes, sir. Yes, please go ahead. It is art of planning to achieve your goals. Very good. It's art of planning to achieve your goals. Very nice, Omkar. Very good. One more person. Yes. Anyone can speak. Shall I add, sir? Yeah, Rajesh. Okay, go ahead. Okay. Sir, I think a strategy is nothing but it is the process of the creating set of the different type of activities and aiming occupying the valuable position for the different of competitive organization or companies. Okay, very good, very good, very good. Hello. Yes, Saurabh, go ahead. Strategy is a general plan to achieve one or more long-term goals or overall goals under the condition. Yes, very nice. Yes, of course, Saurabh, very good, very good. I have to ask something. Yes, Himanshu. Sir, can we say that strategy is planning? Yes, of course, strategies are planning, no doubt about it. Yes. Should I add something? Yes, okay, go ahead. Sir, strategy is an action that managers take to attain one or more of organization goals. And second one is it's in broad action oriented items that we implement to achieve the objectives of business. Very nice, Neha. Very good. Very good. Okay. So I want every one of you to participate. और देखो, याद रखो, अभी तो ये पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं है. आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हो, पब्लिक के सामने नहीं हो. और पब्लिक के सामने नहीं हो तो आपको तो बड़े खुल के बोलना चाहिए. मतलब आपको कोई हेजिटेशन होना ही नहीं चाहिए. मैं समझ सकता हूं कि पहली बार किसी को पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है तो उसको डर लगता है. आपके सामने तो कोई भी नहीं है तो आप बिंदास बोलिए, बिल्कुल डरिए मत और खुल के बोलिए. और मैं चाहता हूं कि जो लोग बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो लोग भी बोलें. तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. एंड ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि अब तक जिन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया है उनमें से किसी ने बोलना चाहिए. देखिए, आप लोग अपने आप बोलिए, नहीं तो फिर मुझे आपका नाम लेके कॉल करना पड़ेगा. तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप बताइए. तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ टू नो हाउ मच प्रॉफिट टू अर्न इन बिजनेस और हाउ मच प्रॉफिट. अब देखिए, आप सब लोग MBA के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, राइट. और आप लोग बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं. और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं कि आपको जॉब क्रिएटर बनना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बनना है. ये आपका मिशन होना चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए. तो सीधी सी बात है, इसका मतलब कल को आप बिजनेस चालू करोगे, और अगर आप बिजनेस चालू करोगे तो एक सवाल जो आपको हमेशा आंसर करना पड़ेगा वो ये कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5. सो एनीबडी कैन आंसर क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मच प्रॉफिट शुड यू अर्न इन अ बिजनेस? Sir, I think around 15 to 20% approximately. ओके, अब देखो राजेश, मैथिली, नेहा, हिमांशु, सौरभ,
आप लोग पहले आप लोगों को मैं बाद में चांस दूंगा, क्योंकि आप पहले ही अच्छा कर रहे हैं. यू ऑल ऑफ यू आर रियली डूइंग वेरी वेल. सो आई वुड लाइक कि पहले जो लोग नहीं बोले हैं उन लोगों ने आंसर देना चाहिए, और उन लोगों के आंसर खत्म होने के बाद में देन आई विल गिव चांस टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो. एंड राइट, सो ओके, anyone other than these 5-6 people? Sir, we have to earn profit up to that range where our business all financial requirements get fulfilled. Very good, Gaurav. Very nice. And some small percent remain for saving. For saving, okay. Okay. It cannot calculate. I think it cannot calculate in percentage. Mm-hmm. Very good. Sir, I think total revenue minus total expenses is profit. Yes. So whatever revenue we generate from our business, we minus our expenses from that, and whatever remaining that is our profit. So that is must be in a 10%, 20% or 15%. It depends on how you're doing your business. Okay, तो प्रतीक्षा, आप ऐसा मान के चलिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, है ना? तो आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको ऑब्वियसली आप बिजनेस के ओनर हैं तो आपको प्लान करना होगा. तो कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे आप? अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं अपने पीछे वाले लोगों को बोल दें कि जब आप बोल रहे हैं तो वो थोड़ा शांत रहे, नहीं तो उनकी आवाज सबको सुनाई पड़ेगी. यस प्रतीक्षा. Yes, sir. Approximately 15 to 20%. 15 to 20%. Okay, very good. Okay, anyone else? Harshada? Same answer. How much? Same, 15 to as low as 5 and as more as 20. Okay, now good. So now tell me, why do you say 20? Why don't you say 100%? We are selling something, so we cannot give out margin of 100%. So as high as we can go up to 20%, we can take out our margin as 20%. Okay, good Harshada. Okay, very good. So okay, good. Let's go to Manasi. So up to 30%. 30%. Manasi, आप 30% क्यों कह रही हैं? Why you say 30%? Sir, all expenditures and some for savings, so 20 to 30% are required. 20 to 30% is required. Okay, very good. So let me go to the next question now. And the next question is कि capital expenditure क्या होता है? What is capital expenditure? Hello, sir. Yes. So the funds used by company for trade and the management of the physical assets of the company. Okay. Okay, good, Mansi. Anyone else? What is capital expenditure? Whatever money to our business, that we call a capital expenditure. Okay, and why capital expenditure is necessary? Because we have to start our business from scratch. We should start with our capital so that we can expand our business more. Okay. So, but what is capital expenditure? See, capital is one. Capital expenditure is something else. So, capital is money. What is capital expenditure? Money spent by a business. Capital expenditure. Okay, one at a time. Okay, Mandar, go ahead. Sir, capital expenditure means which refers to the funds which are used by the company for maintenance, long-term assets, like this. Okay. What do you mean by long-term assets, Mandar? Sir, long-term assets means physical, that's non-consumable assets like this. Property, equipment. Equipment. Okay, very good. Okay. So Yeah, okay, Neha. funds used by company to acquire, upgrade and maintain physical assets like property, plants, buildings, etc. Okay, good. Okay, Rajesh. Sir, to acquire or upgrade in life, useful life, like if organizer buy some machinery, then it goes in capital expenditure. Capital expenditure. Okay, Maithili. Sir, same as Neha said that.
To upgrade and maintain the physical assets. To upgrade and maintain the physical assets. Very good. Okay. Let's go to the next question. And this question is to YP Aniket. Aniket, the question is, what is working capital? This question is to Aniket now. Aniket, what is working capital? Aniket, are you there? Okay, so let's Aniket, you can think about it, and I will come back to you a little later. उसके पहले Prajakta Sandhikar. Prajakta, what is working capital? Sir, I think it is faculty. Yes, sir, it is one of our faculty member, Prajakta madam. All right, okay. She's here to take attendance. Okay, good. All right, Prajakta, very good. Okay. All right, so no worries. Aher Viren. Aher, what is working capital? Sir, hello. Sir, am I audible? Yes, you are audible. So working capital is that is the capital means or money which is with us in day-to-day trading operations in the business, which do not includes the current asset or the current liabilities. It is the money which is being used by us in day-to-day trading and for our business. Okay, very good. That can be known as the working capital. Yes, very good, Aher Viren. Okay, so same question to Shubham Gunjal. Shubham Gunjal, what is working capital? What is working capital, Shubham? Business or in running business is called as a work. Fund in business, sir. Hello? Yeah, go ahead. I can hear you. Sir, I'm audible? Yes, you are audible. Fund which is involved in business or which is used as a day-to-day working in business, sir. Can you give me some example of working capital, Shubham? Can you give me some example of working capital? Salary of employees. Salary of employees, okay. Okay, next question is... Sir, I have to ask something. Okay. Sir, if we are running a business and we have to upgrade the product which we are selling, upgrade or renovate, तो वो working capital में जो खर्चा होगा working capital में आएगा कि expenditure में आएगा? वो expenditure में आएगा. That will be part of expenditure, not working capital. Not working capital. Okay. Sir, can I add an example of working capital? Of course, go ahead. Sir, working capital is nothing but the amount which is spent for a day-to-day activities. Okay. Like if we buy some, I can say machinery, then we should have to work for machinery. We should buy to raw material. So I think raw material comes in working capital. Okay. Is it? Yes, raw material is yes. Or you can say purchased current assets. Okay, good. Very good, friends. I think all of you have really done, looks like a good preparation. तो मालूम पड़ता है कि आप लोगों ने तैयारी अच्छी करी है, which of course is a good sign. Now let me quickly give you an idea about all these 18 questions that I gave to you yesterday. So let's begin with okay, please unmute, please mute yourself. So question number 1, what is profit? Remember, profit is very simple. Income minus expenses is profit. Income minus expenses is profit. But that is the general definition of profit. As far as growing the business is concerned, as far as achieving better results, creating more value in the business, the profit can be understood in many ways. And how the profit can be understood in many ways, this is how the profit can be understood. So जब आप आपका बिजनेस चालू करते हैं, when you start your business, or
if you are helping somebody in the business, you will have to understand the profit in a much bigger way. So profit can be gross profit. So what is gross profit? Gross profit is sales minus material cost minus the manufacturing expenses, and what remains in your hand, that is your gross profit. तो gross profit की definition क्या है? Gross profit की definition है sales minus material cost minus the manufacturing expenses, and what you get in your hand is known as your gross profit. So सबसे पहला प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट. अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक और खर्चा माइनस करोगे जिसको बोलते हैं सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो सीधी सी बात है, आप जिस कंपनी को चला रहे हो या जिस कंपनी को चलाने में आप मदद कर रहे हो या जिस कंपनी के लिए आप शुरू में काम कर रहे हो, तो आपको ये समझना होगा कि किस किस तरह के खर्चे होते हैं. सो देयर इज एन एक्सपेंस दैट इज नोन एज सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. यानी कि जो कंपनी है वो एग्रीकल्चर कंपनी हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या सर्विस कंपनी हो, डजेंट रियली मैटर, उसमें खर्चे करने पड़ते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं, सेलिंग के ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं. सो ऑल दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. शॉर्ट में उसको SG&A बोलते हैं. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे SG&A. अब आपके हाथ में जो बचेगा उसको बोलते हैं EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. इसको कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं. अब देखिए, आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट का मतलब इतना ही नहीं है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस. प्रॉफिट के बहुत सारे मायने होते हैं, और बहुत सारे मायने क्यों होते हैं? क्योंकि आपको बिजनेस को आगे लेके जाना है, और बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए आपको प्रॉफिट को अलग अलग तरीके से समझना होता है. तो EBITDA यानी कि कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, एंड दैट इज योर कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अब EBITDA में से आप क्या माइनस करोगे? EBITDA में से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. तो वो डेप्रिसिएशन क्या है? अब देखिए, आप बिजनेस में बिल्डिंग यूज करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं, फर्नीचर यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, बहुत सारी एसेट्स यूज करते हैं. तो उन एसेट्स की वैल्यू हर साल कम होती जाती है. तो जो वैल्यू कम होती है एसेट्स की, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. एमोर्टाइजेशन क्या होता है? दो तरह की एसेट्स होती हैं बिजनेस में. अभी समझ के लीजिए, तो यू विल बिकम ए चैंपियन. You will become a champion if you understand this today itself. So one is depreciation. I am sure all of you have understood as to what is depreciation. Then there is something called as amortization. अब देखिए, बिजनेस में दो तरह की एसेट्स होती हैं. वन इज टेंजिबल एसेट्स, यानी कि बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, शिप. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ intangible assets. अब बिजनेस में these are all examples of tangible assets. Then in the business you also have tangible assets. And what are the intangible assets? Intangible assets are copyright, brand name, logo, software, goodwill. Now these are examples of intangible assets. Design, patent, technical know-how. These are examples of intangible assets. Intangible assets का मतलब क्या है? Intangible का assets का मतलब है एक asset जिसको कि आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते. That is your intangible assets. सो आप इंटेंजिबल एसेट्स को भी बिजनेस में यूज करते हो, उनकी वैल्यू भी कम होती है. तो जो टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, और जो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन. सो EBITDA में से आप क्या माइनस करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, और आप उसमें से माइनस करोगे एमोर्टाइजेशन. अब आपके हाथ में क्या बचा? उसको बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. और ये EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं. सो EBIT में से आप क्या माइनस करोगे? EBIT में से माइनस करोगे फाइनेंस कॉस्ट, विच इज ऑल्सो इंटरेस्ट कॉस्ट. यानी कि आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो नेचुरली आपने लोगों से पैसा उधार लिया, बैंक से पैसा उधार लिया होगा, इंस्टीट्यूशन से पैसा उधार लिया होगा. सो वेन एवर यू बोरो मनी फ्रॉम समवेयर यू हैव टू पे इंटरेस्ट, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज योर फाइनेंस कॉस्ट. सो EBIT में से आप माइनस करोगे फाइनेंस कॉस्ट. अब आपके जो हाथ में बचेगा उसको बोलते हैं EBT. EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स. और EBT में से आप क्या माइनस करोगे? EBT है, अर्निंग बिफोर टैक्स है, इसका मतलब क्या माइनस करोगे? टैक्स माइनस करोगे. और टैक्स माइनस करोगे EBT में से, तो आपके हाथ में क्या बचेगा? दैट इज नोन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT. EAT यानी कि ईट. ईट का मतलब क्या है? ईट का मतलब यह है कि अगर आपके बिजनेस में
ईट का फिगर अगर पॉजिटिव है तो आप ईट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट ईट। यानी कि बिजनेस में हो तो आपका ईट का फिगर पॉजिटिव होना ही होना चाहिए। पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए, वो हर साल बढ़ते रहना चाहिए। क्यों बढ़ते रहना चाहिए? कि ओनली व्हेन योर ईट फिगर, ओनली व्हेन योर अर्निंग आफ्टर टैक्स का जो फिगर है, ओनली वो जब तक बढ़ेगा तब तक आप और बिजनेस को एक्सपेंड करते रहोगे। सो ये है आपका क्वेश्चन कि प्रॉफिट क्या है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पर्पस ऑफ एनी बिजनेस? ब्रीफ में बोलता हूं फ्रेंड्स। देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट तो आपको कमाना ही कमाना है, तो पर्पस का कहां सवाल है? मतलब वो तो आपको, वो कोई चॉइस नहीं है। वो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो आप क्या करो, वो बिजनेस बंद किसी और को दे दो। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो तो आपको कोई हक नहीं है कि आप प्रॉफिट बिजनेस चलाओ। सो देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस? दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं सबका एक ही मकसद है। क्या मकसद है? टू क्रिएट वैल्यू। बिजनेस का क्या मकसद है? टू क्रिएट वैल्यू। और क्रिएट वैल्यू करने का मतलब क्या है? टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव टुडे देन व्हाट इट वाज यस्टरडे। यानी कि दुनिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उनका एक ही मकसद है, प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। प्रॉफिट इज नॉन नेगोशिएबल। प्रॉफिट तो आपको कमाना ही कमाना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो आज की तारीख में तो हिंदुस्तान में एक नया कानून है, आई एम श्योर सम ऑफ यू विल नो दिस। देयर इज अ लॉ इन दिस कंट्री नाउ दैट इफ यू डू नॉट मेक प्रॉफिट इन योर बिजनेस देन यू हैव नो राइट टू बी इन दैट बिजनेस, यू हैव टू गिव इट टू समबडी। So there's a law that makes it happen that the company will change the management. तो ये आपको याद रखना है। तो पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है? आई थिंक somebody स्पीकर फोन को म्यूट करने की जरूरत है। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस? याद रख के चलिए, टू क्रिएट वैल्यू, टू क्रिएट वैल्यू बाय मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू। पक्का घुसा के रख लिए दिमाग में, एकदम पूरा अंदर डाल के रखिए कि मैं बिजनेस में हूं और मेरे बिजनेस का मकसद क्या है? टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। और याद रखिए, जो आदमी जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा वो आदमी उतना ज्यादा ग्रो करेगा। टाटास का ग्रुप है, बिरलास का ग्रुप है, 100 साल से भी ऊपर हो गए, 100 साल से भी ऊपर हो गया, लेकिन आज भी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों बिजनेसेस ने, हाउसेज ने क्या किया? ये दोनों बिजनेस हाउसेज ने क्रिएट वैल्यू क्रिएट करी। जो जब से लेके घनश्याम दास बिरला जी ने, जब से लेके जमशेदजी टाटा ने ये दोनों ग्रुप की शुरुआत करी, तब से लेके आज तक ये लोग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा ये वैल्यू क्रिएट करते हैं उतनी ज्यादा उनकी खुद की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ये भी आपको भी याद रखना है कि पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। जानवी, कैन यू म्यूट देम? यू नो, जो भी, सबको म्यूट कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। हेलो, ओके, क्वेश्चन नंबर, I have one question. No, please wait. I will take your question in the end. Question number 3. What is risk and how to manage risk? Remember, बहुत सारे बिजनेसेस दुनिया में बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? क्योंकि ये बिजनेसेस रिस्क की चिंता नहीं करते। आप सभी ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, कोडैक एक जमाने में फोटोग्राफी में नंबर 1 कंपनी थी। आज वो कंपनी नहीं है। और वो कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की चिंता नहीं करी। एक बैंक हुआ करता था, बैरिंग्स बैंक, 100 साल पुराना बैंक था, एक रात में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? रिस्क मैनेजमेंट की चिंता नहीं करी। तो नंबर 3 दैट यू हैव टू रिमेंबर, आज से ही आपको ये दिमाग में डाल के रखना है कि पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू। और क्रिएट वैल्यू के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर टू ऑल्सो मैनेज द बिजनेस रिस्क। यानी कि मेरे बिजनेस में जो भी अनसर्टेनिटी है, रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब है कि मेरे बिजनेस में जो गड़बड़ हो सकती है, जो गलत हो सकता है, मुझे उसकी चिंता आज ही करनी है, आज से ही करनी है, एंड दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेटेजी। आई थिंक आप लोगों ने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। स्ट्रेटेजी इज एन एक्शन प्लान टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है
वो सब पुट टुगेदर इज नोन एज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच प्रॉफिट टू अर्न इन बिजनेस। याद रखिए, पर्पस ऑफ अ बिजनेस इज टू क्रिएट वैल्यू, लेकिन प्रॉफिट तो आपको कमाना ही कमाना है। कैसे कमाना है? चोरी करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, डाका डाल के नहीं, करप्शन करके नहीं। प्रॉफिट आपको कमाना है। कैसे कमाना है? बाय क्रिएटिंग वैल्यू, बाय क्रिएटिंग वैल्यू। और कितना प्रॉफिट कमाना है? जितना कमा सकते हो उतना प्रॉफिट कमाओ। जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कितना प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कैसे ज्यादा से ज्यादा? अच्छे काम करके, बाय क्रिएटिंग वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6, कैपेक्स का मतलब क्या है? अब देखिए, समझ के लीजिए, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं आज की तारीख में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, अब बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि ग्लोबल कंपनी बन चुके हैं। टाटास ग्लोबल कंपनी है, बिरलास ग्लोबल कंपनीज हैं, रिलायंस ग्लोबल कंपनी है, मित्तल्स ग्लोबल कंपनी है, बिल गेट्स ग्लोबल कंपनी है। सो इतनी सारी, वॉलमार्ट है, सारी दुनिया भर में क्यों कंपनियां हैं। तो कंपनी ग्रो कैसे होगी? तो एक कंपनी ग्रो कब होगी? जब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कि एसेट्स क्रिएट करेंगे। ओनली जब आप बिल्डिंग, एक लैंड खरीदोगे, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरी रखोगे और फिर रॉ मटेरियल खरीदोगे, तभी आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो ये लैंड खरीदना, बिल्डिंग बनाना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना और बाकी की एसेट्स खरीदना, दैट इज ऑल नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वर्किंग कैपिटल क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपने फैक्ट्री डाल दी, है ना, आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग बना दी, अंदर प्लांट एंड मशीनरी बिठा दिया, अब स्टील का प्लांट आपने तैयार कर दिया, तो स्टील का प्लांट आपका रेडी है। कैन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्टील? Of course you cannot start producing steel, because for producing steel you need raw material, you need iron ore. So iron ore is part of your working capital. कैश एंड बैंक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, इज पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। समटाइम्स कस्टमर्स को उधारी में माल बेचना पड़ेगा, जो माल आपने उधारी में बेचा, दैट इज पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑक्सीजन ऑफ योर बिजनेस? ऑक्सीजन ऑफ योर बिजनेस, रिमेंबर, सिंपल बोलता हूं, सिंपल बताता हूं, कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट यानी कि आपके बिजनेस से जितना आप कैश प्रॉफिट बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी ऑक्सीजन होगी, और जितनी ज्यादा आपकी ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा आपके बिजनेस की लंबी लाइफ होगी। समझ सकते हैं, हमारे शरीर की ऑक्सीजन लाइफ लाइन क्या है? ऑक्सीजन। अगर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी तो क्या होगा? वी विल डाई। सो अगर लाइकवाइज अगर एक बिजनेस में कैश प्रॉफिट नहीं है, दैट बिजनेस विल die. So cash profit or cash profit is lifeline for any business. अभी से याद रखिए, अभी से याद रखिए, and I can tell you आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। All of you are really very fortunate that you are understanding, you are getting to know all this in at this stage only. तो ये चीज अगर आपके दिमाग में मजबूत से बैठ जाएंगी तो आपकी आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। So what is lifeline of a business? Cash profit. Question number 9. कैश फ्लो को कैसे कंट्रोल करें? अब देखिए, अगर आपको बिजनेस पे कंट्रोल करना है तो आप कैश के ऊपर कंट्रोल करिए। क्या मतलब है कहने का? कहने का मतलब ये कि आप मालूम करिए कि बिजनेस में कैश कहां से आ रहा है, और ध्यान रखिए बिजनेस में कैश कहां जा रहा है। तो एज द ओनर ऑफ द बिजनेस, एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ बिजनेस, एज द हेड ऑफ द बिजनेस, आपको इतना ध्यान रखना है कि बिजनेस में जो भी कैश का मूवमेंट होगा वो आपकी नॉलेज के बिना नहीं होना चाहिए, आपके डिसीजन के बिना नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज योर कंट्रोल ऑन द कैश। इफ यू कैन कंट्रोल कैश ऑफ अ बिजनेस, यू कैन कंट्रोल दैट बिजनेस विदाउट डूइंग एनीथिंग। ये जो प्रॉफिट आप कमाते हैं उसको कहां कहां पर आपको लगाना है? उसको आपको बहुत जगह पर लगाना है। जब आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे सो वो प्रॉफिट को कहां इस्तेमाल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10, वेयर टू यूज द कैश दैट यू जनरेट इन योर बिजनेस? सो यूज इट नंबर 1 फॉर रीपेइंग द लोन्स, नंबर 2 फॉर वर्किंग कैपिटल, नंबर 3 फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ, नंबर 4 फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ। और अभी भी पैसा बचा देन यू कैन इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज, अभी भी पैसा बचा देन यू कैन पे डिविडेंड, अभी भी पैसा बचा यू कैन यूज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी भी पैसा बचा then you can buy the company's own share and give the money back to the shareholders. So that is the answer to question number 10. And question number 11. Question number 11 is
हाउ टू एंश्योर प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या है समझ के लीजिए। एक बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट बिजनेसमैन के लिए, ओनर के लिए, सीईओ के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, सीएफओ के लिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग जानना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या है? प्रोडक्ट कॉस्टिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सपोज आप एग्रीकल्चर के बिजनेस में हो, तो एग्रीकल्चर के बिजनेस में जो भी आप फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आप वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि टमाटो, ये एक टन टोमेटो प्रोड्यूस करने में मुझे कितनी कॉस्ट लगी, एक टन मैंगो प्रोड्यूस करने में मुझे कितनी कॉस्ट लगी, एक किलोग्राम चना प्रोड्यूस करने में मुझे कितनी कॉस्ट लगी। ये कॉस्टिंग आपको मालूम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं होगी कि मेरी कॉस्ट कितनी है तो आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, और अगर आपको मालूम नहीं है कि प्राइस कैसे डिसाइड करोगे तो आप बहुत गड़बड़ करोगे। क्या गड़बड़ करोगे कि चांसेस ये कि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखोगे, और अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस कम रखोगे तो समझ के लीजिए आपकी कॉस्ट है 100 रुपया और आप उसको सेल कर रहे हो 80 रुपए में, तो आप बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सही करोगे, और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सही करने से मतलब क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सही करने का मतलब यह है कि जो भी कॉस्ट इनकर हो रही है प्रोडक्ट बनाने में, वो सारी की सारी कॉस्ट आपको एक जगह पे ऐड करनी है। और अगर आपने वो सारी की सारी कॉस्ट अगर एक जगह ऐड कर दी तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग परफेक्ट होगी। प्रोडक्ट कॉस्टिंग परफेक्ट होगी तो आपकी प्राइसिंग परफेक्ट होगी। आपकी प्राइसिंग परफेक्ट होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी परफेक्ट होगी। एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग आपको मालूम करना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट, एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू टू टेक लॉट ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्टिंग डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ टू प्रिपेयर एनुअल बजट। तो एनुअल बजट कैसे बनाएंगे? ये एक सवाल है जो कि आपको समझना है। एनुअल बजट का मतलब क्या है? एनुअल बजट का मतलब ये है कि ये साल में मेरी टोटल इनकम कितनी होगी, मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे। और ये बजटिंग करना क्यों जरूरी है? ये बजटिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ये बजटिंग नहीं करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि साल के एंड में आपको प्रॉफिट नहीं है, आपको लॉस है। और आपको लॉस क्यों? क्योंकि आपने बजटिंग नहीं करी। बजटिंग करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहां पर गड़बड़ है, कौन सी मेरी कॉस्ट ज्यादा हो रही है, कहां पर मेरी इनकम कम हो रही है, उस इनकम को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उस कॉस्ट को कम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वो दैट इज योर एनुअल बजट। और एनुअल बजट कब बनाओगे? साल के एंड में नहीं, साल के बीच में नहीं, साल के शुरुआत में नहीं, साल के शुरू होने से पहले। अगर 21-22 का बजट बनाना है तो 21-22 का बजट कब बनाएंगे? 20-21 में, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज एनुअल बजट और लॉन्ग रेंज प्लान। पढ़ता सिस्टम क्या है? अब सुन के लीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जरा इसको नोट कर लें। पढ़ता सिस्टम गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। पढ़ता सिस्टम क्या है? पढ़ता सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट कंट्रोल का सिस्टम है। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट कंट्रोल का सिस्टम किसने शुरू किया? ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट कंट्रोल का सिस्टम शुरू किया श्री घनश्याम दास जी बिरला जी ने। उन्होंने ये शुरू किया। और ये पढ़ता सिस्टम का मतलब क्या है? पढ़ता सिस्टम का मतलब ये है, घनश्याम दास बिरला जी जब वो बिजनेस चला रहे थे, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, वो अपने बिजनेस को कैसे कंट्रोल करते थे? वो अपने को बिजनेस को कंट्रोल करते थे थ्रू दी पढ़ता सिस्टम। एंड व्हाट इज पढ़ता सिस्टम? घनश्याम दास बिरला जी अपने सारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ में बैठ के डिसाइड करते थे कि ये प्रोडक्ट हमको बनाने में कितने का पड़ेगा, ये प्रोडक्ट हमको बनाने में कितने का पड़ता है, यानी कि कितने का पड़ेगा। अब वो डिसाइड करते थे और उसके बाद में वो सबको बोलते थे कि अब ये जब प्रोडक्ट आप बनाओगे तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, जितना हमने बजट किया है कितने का पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज द पढ़ता सिस्टम ऑफ कंट्रोल। सो आप सब लोग जरा इसके ऊपर रीड करिए, गूगल सर्च करिए और आपको बहुत कुछ जानकारी इसके बारे में मिलेगी। और उसके बाद में एक ऑपरेटिंग लेवरेज है, वो भी मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में स्टडी करिए कि किस तरह से मेरे बिजनेस की सेल तो इंक्रीज हो रही है 100%, लेकिन मेरे बिजनेस इंक्रीज हो रहे हैं 200%, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं 200%। कैसे होता है जरा इसके बारे में पढ़िए। ऑपरेटिंग लेवरेज, अर्निंग पर शेयर, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़िए कि अर्निंग पर शेयर क्या है और फाइनेंशियल लेवरेज क्या है। थोड़ी स्टडी करिए और आपको मालूम पड़ेगा। एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशोज, करंट रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये सारे रेशियोज क्या हैं इनके बारे में गूगल सर्च करिए, पढ़िए।
इससे आपको मालूम पड़ेगा कि बिजनेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। एंड फाइनली जोमेटो, IRCTC, TCS, ओला, उबर, policybazaar.com, जीवनसाथी.com, पेटीएम, ये सारी कंपनीज आज न्यूज़ में हैं। और न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि ये कंपनीज की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों मिल रहा है, उसकी क्या सीक्रेट है? रिसर्च करिए, मालूम करिए, आपस में शेयर करिए, डिस्कस करिए। जब आप लोग यहाँ लौट आ जाएंगे, सब पूना में PBS में आ जाएंगे, तब अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाइए और आपस में डिस्कशन करिए, ग्रुप डिस्कशन करिए कि जोमेटो का पब्लिक इश्यू इतना अच्छा क्यों गया, पेटीएम का पब्लिक इश्यू आने वाला है कुछ दिनों में, उसका भी 16,000 करोड़ का पब्लिक इश्यू है। इतना पैसा लोग देने के लिए क्यों तैयार हैं? ऐसा क्या चमत्कार कर रही हैं ये कंपनियां? फ्लिपकार्ट को इतना वैल्यू क्यों मिलता है? वॉलमार्ट को इतना वैल्यू क्यों मिलता है? जैकमा का जो कंपनी है अलीबाबा, उसको इतना वैल्यू क्यों मिलता है? IRCTC जो कंपनी, उसका इतना वैल्यू क्यों मिलता है? रिसर्च करिए, डिस्कस करिए आपस में, सीक्रेट क्या है उसकी मालूम करिए और बाद में फिर मेरे साथ में शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, विद दिस वी कम टू दी क्लोज ऑफ दिस सेशन। अगर कुछ किसी के क्वेश्चंस बाकी हैं, यू कैन प्लीज आस्क मी। थैंक यू।